एक्टिंग करेंगे, इसके पीछे गाना चला देंगे। उसने चला दी। Okay, students. Today we are going to learn present indefinite. I have already told you about the tenses, and we divided those tenses into primary and secondary. And in secondary we have three tenses that were named as present, past, and future. And in secondary we have four types of tenses. Those are named as affirmative, negative, interrogative, double interrogative, or negative interrogative. So today we are going to start with present indefinite. So first of all, we all know that what is present. Present means ऐसा वक्त जो मौजूदा वक्त होता है, ठीक है. And indefinite means नामुकम्मल, incomplete. And in Urdu we also use another word for indefinite, that is matlik. So how the tense is made? Students, from the ages we are learning that in Urdu pehchan we have ta hai, ti hai, te hai at the end of the sentence. So in all of the tenses, all of the present indefinite tenses, we know that the sentences are end with ta hai, ti hai, te hai. वो क्रिकेट खेलता है, वो भागता है, वो सोता है, वो खाता है, वो नहाता है, वो जाता है, ठीक है. तो ये सारे के सारे जो टेंसेस हैं हम इनमें पढ़ते हैं ता है, ती है और ते हैं. बट एक्चुअली what is the meaning of indefinite? The meaning of indefinite means that the work that is not completed, नामुकम्मल, incomplete task. And what kind of sentences come in indefinite sentences? For example, we know that we use indefinite with present, with past, as well as with future. So indefinite comes with all of these three tenses. So what kind of sentences comes in these tenses that are named as habits are discussed in these sentences, routine works are discussed in these sentences, likes or dislikes are discussed in these sentences, and as well as universal truths are discussed in these kind of sentences. So what are universal truths? All of the morals of the stories are your universal truths. Honest is the best policy, union is central, all that glitters is not gold. ये सबको आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ्स कहते हैं. अर्थ इज राउंड. सो इस तरह के जितने भी टेंसेस हैं स्टूडेंट्स, वो आपके सारे के सारे इंडेफिनिट में आते हैं. यहाँ पे बात समझ आती है बेटा? ओके. अब व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन मेथड और फॉर्मूला इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट Urdu present indefinite sentence into English? Okay. So we shall deal with these kind of with these types of secondary tense. So first of all, we are going to learn affirmative, positive or simple sentences. How these sentences are being made with the help of this formula. As I already told you, students, there are two components of a sentence that are named as subject and predicate. Subject, we know that it's a doer of an action, informed about. And what is predicate? Predicate means informer. Okay. So there are two components in a sentence. Number one, subject, कि वो काम करने वाला. In Urdu we say subject, काम करने वाला. And in predicate, I also told you what is predicate. Predicate is an umbrella term. So in umbrella term we have verb, object, preposition, conjunction, rest of the types of part of speech. Okay. So how we translate present indefinite, Urdu present indefinite into English? So here is the formula. First of all, subject is translated. Second thing, first form of verb with the addition of s or es plus object. So this is the construction method for present indefinite sentence. Understood? Subject, first form of verb, s and es plus object. So the use of s and es with the verb, when s or es are placed with the verb, when s or es are not placed with the verb. So here you should know that if the subject is he, she, it,
and any kind of singular person. Singular person refers to any kind of name. Any kind of name of person, place or thing. Okay. S and ES comes with the base form of verb. First form of verb is also known as base form of verb. So we place S and ES with the base form of verb if we have he, she, it and singular person in the subject. Understood? And if we have I, we, you, they and plural persons in the subject, so nothing is placed with the base form of the verb. Okay? So if we have I, we, you and they. Here, understood friends? Okay. So for example, that how a subject, how a sentence is translated, वो cricket खेलता है. So we know that ता है, ती है, ते है is placed at the last of that sentence. So we know that this is indefinite sentence and present indefinite sentence ता है. And वो cricket खेलता है. So it means that here comes habits or routine verbs. If a person does something, so it means that he or she has made that thing his or her habit or routine verb. So when a person makes those things, so that becomes a habit. So indefinite sentences contains habits. So वो cricket खेलता है. And we also divide Urdu sentence into parts. Okay. So for example, we all know there are three things in a sentence: subject, verb, and object. So how we divide this sentence for Urdu sentence? For example, काम करने वाला subject is file. So वो is subject. And what is verb? जो काम किया जाता है, the action which is being done. ता है, खेलता है. So this is verb. And object जिस पर काम किया जाता है. And at the end we use O, object. So did you notice when we write sentence in Urdu, subject comes first, then object and then verb. But in English, how we translate? Subject comes, then verb, then object. So it means that English contains this formula, SVO, subject, verb, object, and Urdu contains this formula, SOV. This is the difference in between Urdu language and English language. Understood? कि जब हम उर्दू में लिखेंगे ना तो वर्ब पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा. लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो वर्ब पहले आएगा और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा. यहाँ तक बात समझ आ रही बेटा? ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल वी हैव वो क्रिकेट खेलता है. सो आई हैव डिवाइडेड द होल उर्दू सेंटेंस इनटू पार्ट्स for my own comfort. So we shall translate this sentence according to this formula. Subject, verb and object. वो क्रिकेट खेलता है, so वो इंग्लिश में कहते हैं he. So he here is the subject. फिर क्या है? verb ट्रांसलेट करेंगे. This is the verb. खेलता या खेलना. We all know that खेल में कहते हैं play. So we shall write play. And when we write play, we will look at the subject. If the subject is from these words, then S or ES will be placed with the subject. If the subject is not from these words, S or ES will not be placed with these words. So here we have he. So it means that he contains S and ES with the first form of the verb. Base form is also known as first form verb. So he plays cricket. This is the verb. And this is the object. Understood friends? So this is the basic formula or method in order to translate present indefinite sentence into English. And then comes the second example. This example with S and ES and this example without S or ES. If with the sentence हम पतंग उड़ाते हैं, again हम here is the subject, उड़ाना is a verb and पतंग is an object. So we shall translate with the same formula. We fly kites, or you may write kite. We fly kite. It's a singular. So this is the method. This is only for affirmative. This is only for affirmative. If you have not jotted down, please write it down. Is that the formula for negative sentences? How do we make negative or present indefinite sentences? पहले हमने बेटा एफर्मेटिव किए थे, अब हम करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव वर्ड से गुजार है,
मंफी जुमले, मंफी जुमले ऐसे जुमले जिसके अंदर किसी काम के ना होने का जिक्र किया जाए उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड, लेकिन बेटा जब नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हम दो तरह के हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करते हैं, डू और डज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए बेटा हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट और डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटा, पिछले सेंटेंस पिछले कंस्ट्रक्शन मेथड में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा किया था, लेकिन इसके अंदर वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जब डू और डज आ जाता है सेंटेंस में फिर एस और एस नहीं आता है वर्ब के साथ। क्यों? क्योंकि डू और डज, जैसे डू अगर डू के साथ ईएस लगा दे तो डज बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए एस और एस प्लेस यहाँ पर नहीं किया जाता जब डू और डज आ जाए, ये याद रखना आपने। ठीक है, whenever there is do and does in the sentence, the verb is always without s or es, even if the subject is he, she, it, I, we, you. Does not, actually does is placed with he, she, it and singular person, so it means that जहां जहां s और es आ रहा था जिन जिन के साथ वो भी इंट्रोगेटिव था। अच्छा, तो डज नॉट आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर पर्सन्स के साथ, और डू नॉट आता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल पर्सन्स के साथ। ठीक है, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। फॉर एग्जांपल, मैं बर्तन नहीं धोता हूँ, आई, अब आई था तो आई के साथ क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। आई डू नॉट वॉश यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तनों को बोलते हैं यूटेंसिल। वो चाय नहीं पीती है, शी डज नॉट टेक टी। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर डू नॉट आया था और यहाँ पर डज नॉट आया। ठीक है, अब इधर आई है और इधर शी है। ठीक है, अब ये देखिए वर्ब के साथ हमने एस और एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जब डू नॉट और डज नॉट आ जाता है तब वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा बेटा हम नहीं करते। या तो बात समझ आती है? डू नॉट और डज नॉट का यूज समझ आता है बेटा सबको? अच्छा, अब आ जाए बेटा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, इसको इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं। ओके, अब बेटा नेक्स्ट आ गया जी कंस्ट्रक्शन मेथड इंट्रोगेटिव के लिए। स्टूडेंट्स, इसको इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, सवालिया जुमले। ठीक है, जिनमें कोई ना कोई क्वेश्चन किया जाता है। अब बेटा अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन के तौर पे कुछ सेंटेंस पूछना हो तो हम किस तरह करेंगे? बेटा डू और डज जो है वो स्टार्ट पे आ जाए। रिमेंबर दैट, आप जब भी किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। डू और डज स्टार्ट में आ गया, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर भी एस और एस नहीं आएगा क्योंकि जैसे यहाँ पे डू और डज का एस और एस नहीं आया तो ऐसे यहाँ पर भी जहाँ पर डू और डज होगा एस और एस नहीं है। ठीक है, डू डज स्टार्ट पे, अब जिन जिन के साथ डू आते हैं उनके साथ डू आ जाएगा, जिनके साथ डज आते हैं उनके साथ डज आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस लास्ट बेटा ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जब आप लिखेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क को प्लेस करेंगे। अब बेटा फॉर एग्जांपल, क्या तुम गाना गाते हो? अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी शो करवा रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये क्या भी शो करवा रहा है। ठीक है, डू यू सिंग अ सॉन्ग। अब ये देखें, इनके साथ डू था ना, इनके साथ डज था। ठीक है, तो जिनके साथ डू डज था नेगेटिव में उनके साथ इंट्रोगेटिव में भी आ जाएगा। तो डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या वो झूठ बोलती है? डज शी टेल अ लाई। ठीक है, डज शी टेल अ लाई। अब यहाँ पे ये डू के साथ यू आ गया और डज के साथ बेटा क्या आ गया? शी आ गया। बेटा ये दोनों की क्या हुई? इस्तेमाल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम 5 तरह से डील करेंगे चीज़ों को, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये 3 हमने कर लिए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब 2 रह गए थे, डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बेसिकली इनका कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन मैंने खुद से इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। मैंने बोला था हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 5 तरह के जुमले बोलते हैं। ठीक है, 3 वो थे और 2 ये। अब फार्मूला वही रहेगा, मतलब अगर
हमने जब कभी भी इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला हमने अपने अंदर इंट्रोगेटिव वाला ही रखना। अब इंट्रोगेटिव वाला क्या फॉर्मूला था, डू डज शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव था। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसकी उर्दू पहचान क्या होती है, कि उर्दू पहचान बेटा वो होती है कि इन जुमलों के शुरू में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसके साथ, क्यों, इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है, इनको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाता हूँ, एफर्मेटिव, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नेगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इंट्रोगेटिव, मैं स्कूल कब जाता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव, मैं स्कूल कहाँ जाता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव, मैं स्कूल किसके साथ जाता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो वर्ड आ गए उनको क्या कहेंगे आप, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिर्फ सारा इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला, ये देखिए ना, अगर मैं इसको हटा दूं इधर, सारा इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला, बस WH फैमिली को मैंने ऐड कर दिया। WH वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हेन, वेयर, whom, हाउ, whose, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, WH वर्ड्स होते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा कि WH वर्ड स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या देगा बेटा, क्वेश्चन। यहां तक बात समझ आती है बेटा। वो खत क्यों लिखती है, अब सबसे पहले मैं जुमले को यूं करता हूं, क्या वो खत लिखती है, डज शी राइट अ लेटर, वो खत क्यों लिखती है, व्हाई डज शी राइट अ लेटर। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, इंट्रोगेटिव से आगे इस चीज को मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, WH वर्ड्स को मैंने प्लेस कर दिया, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे नेचुरल एग्जांपल देखें, तुम हमेशा क्यों झूठ बोलते हो। अब अगेन हमें ये वर्ड्स बताएंगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। ठीक है, व्हाई डू यू ऑलवेज टेल अ लाई। अब अगर इसको इतना कर दें तो इंट्रोगेटिव है, क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई। अब मैंने जब क्यों लगा दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया, व्हाई डू यू टेल अ लाई। ऐसे बेटा जितने भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हम उनके आगे WH फैमिली को प्लेस कर दें। यहाँ तक बात समझ आती है बेटा सबको। अब आ जाए बेटा नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे, बेटा सेम यही बात है, सेम यही बात है, बस इन वर्ड्स के साथ नहीं लग जाएगा, सेम ही होता है, इन वर्ड्स के साथ नहीं लग जाता है। वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, वो स्कूल कब नहीं जाता है, स्कूल कैसे नहीं जाता है, स्कूल किसके साथ नहीं जाता है। ठीक है, जब इन सब वर्ड्स के साथ बेटा आप नहीं लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, WH के साथ डू डज लगा दिया और साथ में नॉट लगा दिया। WH वर्ड्स, डू डज, नॉट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इन दोनों में कब, कहां, क्यों, कैसे वगैरह के साथ नहीं आता, ये इसके उर्दू पे पहचान होती है। तो फॉर एग्जांपल हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डू नॉट वी गो टू बाजार। ठीक है, इसको व्हाई डोंट वी गो टू बाजार भी पढ़ सकते हैं, कंप्रेस करके। उसके बाद ये सड़क किधर नहीं जाती है, वेयर डज नॉट दिस रोड लीड टू। ठीक है ना, डज नॉट लगा दिया मैंने, एक मैंने डू के साथ एग्जांपल दिया, एक मैंने डज के साथ एग्जांपल दिया। ठीक है बेटा, तो वेयर डज नॉट दिस रोड लीड टू स्कूल, मतलब इसके साथ हेल्पिंग के साथ आपका डू नॉट और डज नॉट लगेगा, आगे सारा आपका इंट्रोगेटिव वाला चलेगा। ठीक है बेटा, बस इसकी है नोट कर